Good morning to all of you dear students. This is a program given on the board. This is to find the sum of the series. You have got already the PDF of this question, and here you try to understand how the series is finding the sum of the according the given criteria here. This is the criteria that first x power 1, then x power 3, then x power 5, and there is that is the first time the power 1, so the next time will be minus power 3, next time it will be plus, then minus, then plus, like that. If means the power of the number of the loop is divisible by 2, then it will be minus. If not divisible by 2 means that is odd, so it will be plus. So this is the question of the day, and I hope that already you have gone through the PDF you got yesterday. So dear students, here you can see that this is the question s equal to x power 1, then minus x power 3, then again it is plus, then x power 5. So this is positive x power 1, then here it is odd number x power 1. Okay, so this number x power 1 is not divisible by 2. This power is not divisible by 2, so this will be sum. So not equal to 2, not equal to 0. So this will be sum, and if it is divisible by 2, so that will be minus. So here x power 1, x power 3, minus x 5, and 7, like that up to n terms. Up to n terms means the loop is running 3 times, 4 times, 5 times. How much terms you want to repeat the loop, that is known as the terms. Okay, means this type of data, how many terms you want to add and you want to subtract, that is the number of terms. So that also we have to input. At the time of the execution, the control will ask to input the data in variable x as well as the input the data in variable n. Okay, n for what? For number of terms. So here this input java.util.string, because this scanner class will be used. Class sum series, a class must be related to the program. So I am going to find out the sum of the series. That's why I have created here sum series. Public void input. This is your method line. These are the variables int x, comma n, comma j, comma s equal to 0, comma term equal to 1, like that. The variables which we will further use in this program are created here. Scanner class is created here, that the object by the help of SC object we have to input the value in the variable x as well as in variable n. Here system out println input value of x. It is in double quotation marks, so it is a message you will get on the screen at the time of the execution of the program. Before entering the value of x, you will get this message on the screen. And this x equal to sc dot next class is the value in which you have to suppose I input here 2. So the value of x will be 2. Right? System out println enter number of terms, and as I told that it will ask how many times the loop can be repeated and how many terms means this type of individual values, how many terms you want to add. So that is asking here that will be included in variable n. Okay, अब तक आपने क्या किया? अब तक आपने वेरिएबल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके बाद में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसका अलग अलग आपने इंट टाइप क्रिएट किया, फिर स्कैनर क्लास क्रिएट किया, इसके बाद में आपने वैल्यू इनपुट किया x में, उसके बाद में वैल्यू इनपुट किया n में. सपोज आपने यहाँ पे दिया 6, यानी कि x की वैल्यू 2 है और ये 6 टर्म तक चलेगा. मतलब ऐसे हम 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 3, इस तरह से हम कितने टर्म तक जाएंगे? 6 टर्म तक जाएंगे. राइट, यहाँ से हो रहा शुरू आपका लूपिंग. For j equal to 1, j less than equal to n. The value of n is 6. The loop will run 6 times. First time the value of j is 1. Condition is true. The control will be inside of this block. Double k equal to math power x comma term 1. So you know the value of x is 2 and the value of term is 1. I have created here and initialized here the value of term, that is 2 power 1. This is x power 1, so the value of x is 2 and 2 power 1.
Now the value of j is 1. After taking the power value to power 1, the value will come in variable k in double type. You know the method of power whenever you are returning the value from the method of power. So this variable must be of double type. After that we can cast in the int type. So that is done here. If j modulus is not equal to 0, this is very important line. क्या रहा? अगर j का जो लूप है अगर उसको डिवाइड करने के बाद में 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर में नहीं होगा मतलब नंबर क्या है, वो लूप कौन सा है, ऑड है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ठीक है। तो पहली बार ये पहली बार, उसके बाद में दूसरी बार, उसके बाद में तीसरी बार, इसके बाद तो यहाँ पे एक के बाद फिर माइनस होना है, फिर प्लस होना है, फिर माइनस होना है, मतलब वो अल्टरनेट होना है। इसके लिए आपने चेक किया j मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, सो j का वैल्यू कितना है, 1 है। मॉडुलस 2 यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 1। क्या अगर ये जो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू मिल रहा है मॉडुलस का, अगर वो 0 के बराबर ना हो तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये क्या करेगा, ये इक्वल टू s प्लस int k का वैल्यू यहाँ पे जो मिला है 2 पावर 1, तो उसको यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे यहाँ पे जो है 0 अगर इसको मिला होगा डबल टाइप में, तो int क्या करेगा, इसको इग्नोर करके इसमें सिर्फ s में उसका इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा और s में उसको सम कर देगा। जब यहाँ पे इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स वाले को नहीं पढ़ेगा, यहाँ पे एक लाइन को छोड़ देगा कंट्रोल, इसके बाद में टर्म प्लस इक्वल टू 2, यानी कि टर्म की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, अब टर्म की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ पे देखो हमने 1 एग्जीक्यूट किया, अब आपको टर्म में कितना चाहिए, 3 चाहिए, यहाँ पे 3 लिखा, हमने इसको कर दिया। फिर यहाँ से आपका कंट्रोल वापस आएगा फॉर लूप पर, यहाँ पर वापस आएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इसके बाद में डबल के इक्वल टू माइनस पावर x कॉमा टर्म की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3, टर्म प्लस इक्वल टू 2, तो कितना लेके आया 3, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 पावर 3, यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा 2 × 2 इसके साथ 0.0 लगा रहेगा, 2 × 4 = 8.0, उसको k में स्टोर करेगा उस वैल्यू को। फिर यहाँ पे आएगा इफ j मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो j की वैल्यू 2 है, j मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 कह रहा अगर j की वैल्यू को 2 से रिमाइंडर में डिवाइड करने के बाद में अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर ना तब कंडीशन ट्रू है। लेकिन अब क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, और जब एक कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पर, अब क्या करेगा, इस वाले को एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा, तब ये हो जाएगा s इक्वल टू s माइनस int k। यहाँ पे k की वैल्यू 8.0 थी, अब इसको 8 करेगा, यहाँ पर s की वैल्यू सपोज 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस 8, इसकी वैल्यू सपोज कितनी हो जाएगी 10। इसके बाद 10 प्लस इक्वल टू 2, अब इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से वापस आएगा, इसकी वैल्यू j की लूप की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये थर्ड टाइम रन कर रहा है। ओके, कुछ समझ में आ रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अब यहाँ पे आ गया, अब इसकी वैल्यू j की वैल्यू 3 हो गई, फिर से कंडीशन ट्रू है क्योंकि n की वैल्यू 6 है, इसका लिमिट 6 तक है। फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा अंदर, यहाँ पे x कॉमा टर्म, तो टर्म की वैल्यू कितनी हो गई 5, x की वैल्यू फिक्स है दैट इज 2, तो 2 का पावर 5 ये वाला, यानी कि x 5 को क्या करेगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा, जो इसको आंसर मिलेगा वो k में स्टोर करेगा, डबल टाइप देगा। फिर यहाँ पे आएगा j की वैल्यू 3 है, क्या करेगा j मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो अब ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि 3 को 2 से डिवाइड करेगा तो इसको रिमाइंडर कितना मिलेगा 1। अब 1 को कह रहा अगर 0 के बराबर ना हो तब कंडीशन ट्रू है, तो 0 के बराबर नहीं है। अभी तक आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसमें इस टाइप का कंडीशन आता है, इफ j मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इफ j मॉडुलस 2 इक्वल टू 1। ये थोड़ा उल्टा है लोग, इसमें हम कह रहे हैं जब उसके बराबर ना हो, उसके बराबर ना हो तब कंडीशन ट्रू होगा। ओके, तो उसके बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर अब इसको एग्जीक्यूट करेगा s इक्वल टू s प्लस int k, तो जो k की वैल्यू नहीं होगी डबल टाइप में सपोज 125 या कोई भी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने के बाद आई होगी,
वो इसमें वैल्यू को पॉइंट जीरो में लगा होगा क्योंकि डेसिमल है, तो इसको इंट में कन्वर्ट करके फिर से जो सम की वैल्यू ऑलरेडी इसमें स्टोर है इसको भी उसमें ऐड कर लेगा। ओके, फिर इसको एल्स में एग्जीक्यूट करेगा, फिर टर्म को एग्जीक्यूट करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब देखो यहाँ पे 7 है। ओके, फिर यहाँ से वापस आएगा j की वैल्यू 4। जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी फिर इसके बाद में यहाँ पे आएगा, तो अब यहाँ पे करेगा 2 का पावर 7, जो वैल्यू आएगी k में स्टोर होगी। फिर यहाँ पे चेक करेगा k मॉडुलस 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉडुलस कितना मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। यार अगर 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो तब क्या हो गया, यहाँ पे ये 0 है तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो एल्स में आएगा, इसको ऐड करेगा। ये प्रोसेस आपका 6 टाइम चलेगा। जब इसके बाद में j की वैल्यू 5 होगी फिर j की वैल्यू 6 होगी। 6 के बाद जब j की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये 6 टाइम इसका टर्न पूरा हो चुका होगा और ये यहाँ से स्किप करेगा। तब तक जो s की वैल्यू है इसमें स्टोर हो चुकी होगी, निगेटिव और पॉजिटिव को मिला के इसकी वैल्यू इसमें सम हो चुकी होगी अकॉर्डिंग दिस सीरीज। फिर जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका कंट्रोल यहाँ से बाहर आ जाएगा। जब यहाँ से बाहर आएगा तो आउटपुट देगा। स्क्रीन पे सबसे पहले लिख के आएगा सिस्टम आउट प्रिंटलन आउटपुट, फिर लिख के आएगा सम ऑफ सीरीज इक्वल टू s। तो सम ऑफ सीरीज डबल क्वेश्चन मार्क में है, इसको आपको एज इट इज आंसर मिलेगा और s की जो वैल्यू है यहाँ से उसको कॉल कर लेगा, मतलब s वेरिएबल की लास्ट टाइम जो वैल्यू अपडेट हुई होगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम आप इसको 2 बार 3 बार करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू वेरी मच।